we'll talk about the education system in our India. Here we'll talk about the education system from early Vedic age to till. Okay, so stay tuned. Here we also talked about like our constitutional angles with respect of education and government schemes with respect of education system of our India, and also it is a very important report, ASER report, which talk about the especially rural survey based report, in which the all of the facts and figure definitely goes to mention about the education. Okay, so let's continue. Yeah, so here you are seeing the screen. Here the Muni, and who is teaching his disciples and Shishyas, you can assume like that. I was also thinking that I also should be there in that particular time period of the Vedic literature. Then my education would be completed like this. There should be Rishi and Sage, and who's really being interested, okay, while teaching the Shishyas, as I am just assuming myself as in front of him and her, kind of. Okay, so it's just an imagination. Okay, so yeah, so Gurukul education system, Bharat ki Gurukul. The Indian education system has evolved from the oral means जो भी हम orally बोलते हैं, बोल के हमारे जैसे मंत्रास हुए, चैंटिंग्स हुई हमारी, है ना, हमारे हाइम्स जो हुए, हाइम्स हुए मतलब होता है श्लोका वगैरह इनको बोलते हैं. सो इवॉल्व्ड फ्रॉम द ओरल रेसिडेंशियल गुरुकुल ट्रेडिशन ऑफ द वैदिक एज 1500 to 600 BC. वैदिक एज पहली बात तो 1500 to 600 BC ई तक कंसिडर किया जाता है, ठीक है. टू अ स्ट्रक्चर्ड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, वैदिक एजुकेशन प्रायोरिटाइज स्पिरिचुअल नॉलेज वेयर द कैरेक्टर डेवलपमेंट, सेल्फ डिपेंडेंसी एंड द हार्ड वर्किंग नेचर एंड द होलिस्टिक लर्निंग, while the today's system focus on academic achievements, scientific knowledge and diverse career paths, guided by the National Education Policy 2020. Here as we read about the NEP 2020, by the use of this particular policy, government has been resumed earlier education teachings and methods in this regard. Okay. So Vedic age 1500 to 600 BC. ओके, गुरुकुल सिस्टम एजुकेशन वॉज रेजिडेंशियल. यहाँ पे शिष्याज होते थे जो स्पेशली विद रिस्पेक्ट ऑफ द सन ऑफ द किंग्स, वेयर द ऋषि गो टू द किंग एंड ब्रिंग देयर सन विद हिम, है ना, in that particular system called the Gurukul system, where the residential facility was also available there. Students means Shishyas lived with the teacher means Guru in that particular time. Natural secluded environment, they are deeply connected with the nature and the roots of their particular relativeness of the human being. Okay, core characteristics focus on the Vedas, Upanishads, mathematics and the ethics, and also the reasoning, as we have been seeing our Mahabharata and Ramayana. Especially if I just talk about the Mahabharata, in which Guru of Arjuna who told him that mark your target, like है ना, जैसे कि चिड़िया की आँख वाला वो इंसिडेंट हमने देखा था. सो आर महाभारता, आर रामायणा, सो दीज आर very important epics of that particular time period from which we are still connected. Okay, still connected. Okay, so this is the important thing to know about. Okay, so let's continue. Objective. What was the objective? The character development, the spiritual growth, simple living and inclusivity, and initially both boys and girls could be educated. दोनों educated होते थे initially, मतलब earlier phase में, शुरुआत में. But later periods, particularly the later Vedic era, so the stricter constraint on the access often limited to upper caste. लेकिन as the time passes, we have been seeing like the education system being prior to upper classes, like the kids of the rajas and maharajas
rather than the lower caste people's kids. Okay, so this is the important thing to mark it about. Okay, so let's talk about the post-Vedic ancient period. Post-Vedic means it is just time period of the 600 BC around. It is around the 600 BC time period. Okay. So post-Vedic ancient period, Buddhist influences. Here we will talk about the Buddhist influences. Education expanded. हमें पता है एजुकेशन सिस्टम फिर आगे जाके और एक्सपेंड हो जाता है थ्रू विहारास एंड द यूनिवर्सिटीज़ लाइक द नालंदा एंड द तक्षशिलास इन गांधार. These are the locations and some of the ancient universities like the Nalanda and Takshashilas, offering the more structured learning opportunities compared to the personalized Gurukul setting. Means earlier time में हमने देखा, थोड़ा हम सम अप करते हैं, वैदिक पीरियड में हमने देखा कि गुरुकुल में वही रेसिडेंशियल फैसिलिटी होती है, उनको नेचुरल चीज़ों से कनेक्ट करना, मैथमेटिक्स डिफरेंट चीज़ें, रीजनिंग पढ़ाई जाती थी. फिर जैसे जैसे पोस्ट वैदिक पीरियड आया, मतलब वैदिक पीरियड से हम थोड़ा और आ गया है, तो इसमें एंसेंट पीरियड आ जाता है, मतलब बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस काइंड ऑफ. हियर वील टॉक अबाउट द बुद्धिज़्म, जैनिज़्म. सो स्पेशल जो एंसेंट पीरियड की जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ रही हैं, जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन स्प्रेडिंग. ओके, हियर विल डेफिनेटली वी हैव सीन लाइक different students and the teacher also from the world side, they also came to India and who gained the education, and also praises the kings and queens and their facilities available to their masses, and also the education systems and the respect for the their gurus, their disciples, their gurus. It is important piece. Okay, so here we'll talk about, let's talk about the Biharas and universities like Nalanda, best university, Takshila, best university, offering the more structures than the Gurukul setting. Earlier, here we are comparing Gurukul setting from the Vedic era, and post-Vedic means Biharas and like the Nalanda and Takshila. So अब यहाँ पे पहले जो गुरुकुल की सेटिंग हुआ करती थी, उनसे ज़्यादा अपडेटेड सिस्टम यहाँ पे होने लग गए. अगर मैं बात करूँ नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है. So let's talk about the medieval period and medieval too. Some people like pronounce like the medieval and some of like the medieval. So no doubt in it. So introduction of the madrasas. जब medieval आया means Mughals period and kind of Mughals and the Delhi सल्तनत के बाद फिर Mughals ये सब चीज़ें, तो मदरसाज होते थे, मकतब्स होते थे, फोकसिंग ऑन द इस्लामिक एजुकेशन. अगर मैं इस्लामिक एजुकेशन की बात करूँ medieval period में, तो वो मदरसाज होते थे, कुछ मकतब्स होते थे. If I'm just not wrong, so still the madrasas are also run. Okay, alongside the continued existence of indigenous gurukuls. ठीक है. कॉलोनियल पीरियड 18th to 20th सेंचुरी, यहाँ पे ब्रिटिशर्स आ जाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द ब्रिटिशर्स समथिंग इन न्यू ब्रीफिंग. सो 16th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स मीन्स अंग्रेज, ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एज अ ट्रेडिंग कंपनी. Okay, but as a trading companies, but later what we see like they saw the condition of the Indian rulers and the miserable situation of their masses and the mismatches structured of the ruling parties. So they started to transform themselves from the trading to administrative companies. So it is important to know about. अब ब्रिटिशर्स क्या करने लग गए थे, पहले तो कंपनी बन के आए कि हम ये ट्रेड करेंगे. इनके चार्टर्ड होते थे, इनके गोइन जैसे क्वींस होती थी, क्वींस होते थे, वो 10 ईयर के, कुछ 20 ईयर के, इनके चार्टर्ड वैसे थे. मतलब इतने टाइम के लिए आपको जाना है इंडिया में, आपको बिजनेस करना है, पैसा कमाना और हमें भेजना है. लेकिन जब इन्होंने देखा कि जो इंडिया का तो जो सिस्टम है, जो रूलिंग सिस्टम है, यहाँ के जो रूलर्स है वो बहुत वीक है, प्रॉपर इनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इसकी वजह से इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन, इन लोगों ने अब हम हमारी रूट्स को अच्छे से बूस्टअप कर सकते हैं. तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हो गई जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से मैंने आपको बताई है. कहाँ से लिंक करके बताइए, मॉडर्न हिस्ट्री से लिंक करके बताई है. ठीक है. ओके, सो 1835 में एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आता है. सो ईयर 1835 मार्क द ईयर. इसमें इंग्लिश, क्योंकि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, ये एक एजुकेशन एक्ट लेकर आता है. इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश, इट मेड इंग्लिश द फॉर्मल मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन. इन्होंने बोला इंग्लिश ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगी, कि आपको जो भी बात करनी है आप इंग्लिश में ही करोगे, जो भी अपने व्यूज़ डिलीवर करना है वन इंडिविजुअल टू अनदर, तो आपको इंग्लिश में ही डिलीवर करना होगा. एमिंग टू क्रिएट अ क्लास ऑफ एजुकेटेड इंडियंस टू असिस्ट इन गवर्नेंस. इवन वो इंडिया के लोगों को भी, इंडिया के जो एलाइट ग्रुप के जो पीपल्स होते थे, जैसे कि हमारे
लाइक इफ़ आई एम जस्ट नॉट रॉन्ग द पॉलिटिकल ग्रुप, महात्मा गांधी, हमारे लाल पाल भी हुए, ये सब है ना। तो ये सब क्या करते थे, ये कुछ एलिट ग्रुप के थे, तो वो ये चाहते थे कि इन लोगों के माइंड को थोड़ा फ्रेम किया जाए, और वो क्या करते थे, हमारे एजुकेशन सिस्टम को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते थे। लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मल स्कूल्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर्ड नॉन रेजिडेंशियल स्कूल्स एंड कॉलेजेस बेस्ड ऑन द वेस्टर्न करिकुलम। अब जैसा कि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स तो रहा एजुकेशन सिस्टम, बट नॉट नॉन रेजिडेंशियल, कि रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, बट सम ऑफ वर देयर इफ दे आर अलाउइंग द ब्रिटिशर्स टू द इंडियंस, सो दे आर सम स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ फॉर द एलाइट ग्रुप ऑफ द इंडियंस। बट हियर इज़ द लूप होल्स, यहाँ भी एक क्लिच था कि ब्रिटिशर्स इन लोगों को, जो एलिट ग्रुप को भी इसलिए ट्रेन करना चाहते थे सो दैट कि वो ब्रिटिशर्स की हेल्प कर पाए विद रिस्पेक्ट ऑफ देयर पॉलिसीज़ in India, okay, to develop their trade and tariffs and kind of, okay. सो जो कॉलेजेस भी थे वो भी वेस्टर्न करिकुलम बेस्ड थे, ऑफन लीविंग बिहाइंड द ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। तो ट्रेडिशनल जो नॉलेज सिस्टम प्रीवियसली वैदिक एरा से, फिर हमने देखा एंशिएंट टाइम जो कि नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तो इन सभी को अब ब्रिटिशर्स पीछे छोड़ने लगे थे। इवन वो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा डिनाई करते थे, उसे मतलब ब्रिटिशर्स की पॉलिसी और उनके मॉडर्नाइजेशन सिस्टम के बेसिस पे उसको बहुत इनएक्यूरेट उसको कंसिडर करते थे। कहाँ के एजुकेशन सिस्टम को, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को, जो कि एज अ ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम माना जाता था। लेट्स टॉक अबाउट द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड 1947 टू प्रेजेंट। अब इंडिया पता है 15 अगस्त टू 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब ब्रिटिश गए, टाटा बाय बाय कर गए, ठीक है। एवोल्यूशन, एजुकेशन बिकम फंडामेंटल राइट, एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया, फोकस किया गया किस चीज़ के ऊपर, फोकसिंग ऑन दी मास लिटरेसी, कि हर एक मास लिटरेसी इन द सेंस पूरी जनता को पढ़ाना है। यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप या एलाइट ग्रुप या कोई लोअर कास्ट अपर कास्ट का कुछ सिस्टम नहीं था, पूरी मास को लिटरेसी प्रोवाइड करानी थी, हर एक लोगों को यहाँ को पढ़ा लिखा बनाना था इंडिया के लोगों को, एंड स्पेशलाइज्ड स्किल, और उनके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी की स्किल्स डेवलप करनी थी, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा NEP 2020. I'm just hoping so everyone you are getting my point, what I willing to deliver to you with respect of education system's root of our country from the early Vedic era to yet, means अभी तक, early Vedic era से लेके अभी तक, ठीक है। Here could be some please like somewhere you can understand my mindset and somewhere not, so please try to cooperate. Here is no issue to understand these of all the things which are running like in the chronology, okay. So NEP 2020, the latest policy focuses on holistic and skill based learning, okay, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो कि 2020 में आई है, जो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन सिस्टम में जो कि मिसमैचेस है, स्ट्रक्चर जो मिसमैचेस है, जो सिलेबस, जो कि स्किल, जो आज की जो जॉब रिक्वायरमेंट है, आज के लेवल की जो मॉडर्न इक्विपमेंट है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर्स चाहिए, या हमारे इंडिया की GDP को जो बूस्ट कर सके, इन सभी चीज़ों से मैच कर जाए, तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे गवर्नमेंट ने लाने की कोशिश की है। बट स्टिल सम देयर आर दी मिसमैचेस ऑफ द एजुकेशन systems delivering, okay. How could we deliver it? So the reducing the just wrote of the memorization and the integrating technology and the vocational training. तो यहाँ पे अगेन वही बात की कि हमें टेक्नोलॉजी से हर चीज़ को इंटीग्रेट करना होगा, जोड़ना होगा टेक्नोलॉजी से, एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी होगी, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट की डिफरेंसेस, एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न, फीचर वैदिक एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है। सो एक साइड हम देखेंगे वैदिक एजुकेशन, एक साइड हम देखेंगे मॉडर्न एजुकेशन। वैदिक में क्या चलता था, गुरुकुल सिस्टम चलते थे, रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम्स थे, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली नॉन रेजिडेंशियल, आज की यूनिवर्सिटी स्कूल कैसे है, यहाँ पे नॉन रेजिडेंशियल होते हैं, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि जो गवर्नमेंट हमारी जो ट्राइबल पीपल के लिए अलग से रेजिडेंशियल एकलव्य मॉडल स्कूल ऐसी स्कीम्स जो लेकर आ रही है, तो उनके लिए फिर वो अलग क्राइटेरिया हो जाता है कि जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं या फिर SC ST कम्युनिटी, उनके लिए स्पेशल प्रिविलेजेस दिए हैं, क्योंकि जैसे कुछ हिली एरिया होगा या जहाँ पे प्रॉपर्ली जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ नहीं रीच कर पा रही हैं, तो फिर उनके लिए एक अलग से कुछ स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट किए हैं, तो वो थोड़ी वहाँ पे क्राइटेरियाज एजुकेशन के थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल तो सबके लिए सेम
सेम ही है। फिर गुरुकुल में क्या चलता था, मेथड ओरल ट्रेडिशन चलता था, जैसे श्रुति स्मृति। श्रुति मतलब होता है, मैं थोड़ा समझाती हूँ। श्रुति मीन्स ये यहाँ पे हमारे सेज हैं, इन्होंने कुछ भी नॉलेज या कुछ भी इन्होंने पढ़ाया, ये बोलकर इन्होंने अपने माउथ से बोला और इनके जो डिसाइपल शिष्य हैं उन्होंने सुन लिया। तो ठीक है, गुरु ने बोला और शिष्य ने सुन लिया, वो नॉलेज गेन हो गई श्रुति। और स्मृति मीन्स क्या होता है कि गुरु ने जो भी बोला वो शिष्य ने सुना, तो उसे सुनने के बाद उसको अपने दिमाग में सेट कर लिया, अपने माइंड में बिठा लिया। एवरीवन, ये स्मृति, श्रुति स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर भी यूपीएससी हमारा अर्लियर हैज़ बीन आस्क द क्वेश्चंस, ओके, सो डोंट नीड टू टेक इट टू लाइटली, ओके। सो stay tuned with positive mindset, okay. And earlier the focus is spirituality and the characters, ठीक है, but currently it should be based on the science and technology and the career, science technology and the career based, ठीक है। गोल लिबरेशन एंड द सेल्फ रियलाइजेशन। अर्लियर टाइम में ये था कि लिबरेशन रहे, सेल्फ रियलाइजेशन रहे, लेकिन मॉडर्न लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, जैसे हम बात करते हैं हमारी कंट्री की जीडीपी के बारे में, ठीक है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल। मैं थोड़ा बता देती हूँ। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल मीन्स एक इंडिविजुअल है, उसके पास प्रॉपर अच्छी एजुकेशन होना चाहिए, प्लस एक अच्छी हेल्थ होना चाहिए, तभी एक इंडिविजुअल ग्रोथ कर पाएगा और एक वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो पाएगा, और तभी उस इंडिविजुअल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगी। और जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा, ये इसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगी, तो हमारी कंट्री की डेफिनेटली जीडीपी वुड बूस्ट अप, ठीक है। तो आई जस्ट होपिंग सो आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। Here I'll show you guys some Vedic images of the Gurukula during the Vedic period. Here you can see over the screen, okay. Yeah, again one more image. Let's talk about the Indian Constitution which ensure education as a fundamental right under Article 21A, ठीक है। अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट होता है 2002 में, और एजुकेशन बन जाती है फंडामेंटल राइट, ठीक है, याद रखना है। विच प्रोवाइड द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो फ्री रहेगी, कंपलसरी रहेगी हर एक बच्चे को, चिल्ड्रन जो कि एज 6 to 14, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट। देन एजुकेशन इज़ ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट। अर्लियर ये जो थी डिफरेंट लिस्ट में थी, जो कि मैं बार बार बताती हूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देयर इज़ दी 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट। यूनियन में यूनियन गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर है, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के पास, वाइल थी कॉन्करेंट में दोनों के पास। तो अभी एजुकेशन जो है हमारा कॉन्करेंट का पार्ट है, सॉरी, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। सो ये अमेंडमेंट होता है 42nd अमेंडमेंट इन द ईयर ऑफ 1976। इससे एसोसिएट करते हैं 1975 to 77। 1977 क्या हुआ, इमरजेंसी लगी इंडिया में। पीएम कौन थी, पीएम इंदिरा गांधी मैडम वॉज पीएम इन दैट पर्टिकुलर टाइम। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। फिर हमारी थोड़ा फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात कर लेते हैं। सेम ईयर फंडामेंटल ड्यूटी एक स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट आती है, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट आती है। और स्वर्ण सिंह कमेटी की जब रिपोर्ट आती है तो इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी इंडिया में मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने की बात की, वो सेम ईयर जब इन बिटवीन दी इमरजेंसी पीरियड। सो ये 1976 में आई। तो अगेन इमरजेंसी कब अप्लाई होती है, 1975 to 1977। ये इंटरनल इमरजेंसी थी एवरीवन। लेकिन जब 1971 में, जो कि पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान जो कि करेंटली बांग्लादेश है, तब वो एक्सटर्नल इमरजेंसी भी हमारे यहाँ लगी थी। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। फिर यहाँ बात की कि 51A जो है, जो हमारा 51A है, इसमें पेरेंटल ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द एजुकेशन विच इंक्लूड फंडामेंटल राइट, अगेन 21 है। डीपीएसपी में जो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, सो इसकी बात करें तो डीपीएसपी के बारे में, तो डीपीएसपी में आर्टिकल 45 इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो डायरेक्ट करता है स्टेट। स्टेट मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट है। ये स्टेट जो 28 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ये अलग है। वहीं हमारे जो स्टेट्स हैं, ये स्टेट मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में बात की है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि आर्टिकल 45 में क्या करे, अर्ली एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करे, एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिलो 6, मतलब जो 6 ईयर्स से बिलो है, मीन्स हमारे जो
1 to 5 एंड 1 to 6 काइंड ऑफ, ठीक है। माइनॉरिटी राइट्स, आर्टिकल 30 बात करता है माइनॉरिटी के राइट्स के बारे में, ठीक है, जो सभी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को बोलता है कि अपनी आप जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, यू कैन डू दिस, ठीक है। हियर यू कैन सी आर्टिकल 29 जो बात करता है इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना, डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिशन करना, रोकना, स्टेट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब गवर्नमेंट के हेल्प से जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनसे कनेक्ट करना। आर्टिकल 28 फ्रीडम रिगार्डिंग अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लेना, वर्शिप करना, पूजा पाठ करना। आर्टिकल 28 वैसे तो राइट टू रिलीजन 25 to 28 है हमारे, कितने हैं 25 से 28 राइट टू रिलीजन, ये हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। 28 सो देन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, कॉन्करेंट लिस्ट अगेन वही कि एजुकेशन शिफ्ट हो जाता है कॉन्करेंट लिस्ट में, एंट्री नंबर 25 लग जाती है, शेड्यूल 7th रहता है इन 1976, ये तो मैं कई बार पढ़ा चुकी हूँ हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। यूनियन लिस्ट में कितने एंट्रीज हैं 63 से 66 तक, ठीक है। कवर्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक द IIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ये यूनियन लिस्ट के अंडर में आ रही हैं, ठीक है। वाइल द कॉन्करेंट लिस्ट कवर्स टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग की, टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग देनी है, वोकेशनल ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करानी है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो अगेन अर्ली वैदिक एज, फिर हमने देखा एंशिएंट टाइम पीरियड देखा, तक्षशिला नालंदा देखा, फिर हमने NEP पॉलिसी पढ़ी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये क्या कहती है, ठीक है। एंड यहाँ आप एक थॉट, डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड, ओके। सो अब बात करते हैं थोड़ा सा एसर की रिपोर्ट के बारे में। यहाँ डेटा है, एसर की जो रिपोर्ट है स्टैंड करती है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ठीक है। इट स्टैंड फॉर द एसर फर्स्ट ऑफ ऑल। रिपोर्ट जो रिपोर्ट रिलीज़ हुई इन जनवरी 2025, ये करेंट डेटा है। दी एसर 2024 रिपोर्ट बेस्ड ऑन 2024 डेटा हाईलाइट्स पोस्ट कोविड रिकवरी रूरल इंडिया में जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी प्रोवाइड करानी है, विच स्टैंड फॉर दी FLN, जो कि विद 66.8% चिल्ड्रन एनरोल इन गवर्नमेंट स्कूल्स। कितने बच्चे 66 to 8%। देन वाइल आउट ऑफ द स्कूल फिगर फॉर एज 6 to 16, कुछ बच्चे जो ड्रॉप आउट भी हुए वो हुए 6 to 16 एज के बच्चे, टू रफली जो कि परसेंटेज वाइज 7 to 8% है। रिपीट करते हैं डेटा, 66 to 8% एनरोलमेंट हुआ, स्कूल गए। कोविड के बाद में 6 to 16 ईयर्स तक के बच्चे ड्रॉप आउट हुए, तो वो परसेंटेज में 7 to 8% रहा हमारा, ठीक है। आई जस्ट होपिंग सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देन बात करते हैं learning level still show over 75% of class 3 students struggling with reading and 66% with math। अभी भी ऐसे बच्चे हैं, इतनी लर्निंग, इतनी एजुकेशनल डेवलपमेंट के बाद, इतनी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उनके बाद भी कुछ बच्चे 75% ऑफ क्लास 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो नॉर्मल रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं। इवन 9-10 तक के बच्चे भी आप देखेंगे, इवन प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी, कि वो प्रॉपर क्या नहीं कर पाते, रीडिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। तो बाकी तो चीज़ें बाद में ही हैं। तो ये एसर की कुछ रिपोर्ट्स हैं, इसकी डेटा है कि प्री प्राइमरी ग्रोथ क्या है, एनरोलमेंट इन प्री प्राइमरी इंस्टीट्यूशन एज 3 to 5 ईयर, ठीक है। फ्रॉम 68 मतलब इट्स बीन रेज 3 year old बच्चे लाइक जो 77.4% 2024 में था, और अभी ये क्योंकि 2018 में 68.1% था, लेकिन अभी ये 77.4% हो गया है एज ऑफ 2024। सो ये वापस से डेटा है गाइज, यू कैन गो थ्रू वाइट, ओके। स्टेट स्पेसिफिक इफ आई जस्ट टॉक अबाउट, सो यूपी शोड अ रिमार्केबल 15% इंक्रीज। यूपी की तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, हमें पता है, नॉर्दर्न स्टेट है ना, सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीट भी ज़्यादा है हमारी पार्लियामेंट में। डन। एंड द बेसिक फैसिलिटीज़ बच्चों की, गर्ल्स की रिस्पेक्ट में, टॉयलेट्स की बात करें, है ना, लाइब्रेरी एक्सेस, तो ये सारा डेटा यहाँ पे गिवन है, ठीक है। एंड क्लास 3 रीडिंग में बात करें तो 15% ऐसा है यूपी में जो यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। फिर बिहार, उड़ीसा, इसमें 8 to 10% इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है इन लर्निंग लेवल्स में, ठीक है। ये एजुकेशन, ये एसर की रिपोर्ट है। अगेन एसर स्टैंड फॉर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। माइंड द थिंग टू नो अबाउट एवरीवन, इट इज़ ओनली रूरल बेस्ड रिपोर्ट। रूरल एजुकेशन, ये हाउस टू हाउस जाके इसका डेटा जो रहता है इस रिपोर्ट का बहुत एक्यूरेट रहता है, क्योंकि यहाँ पे हाउस टू हाउस जाके डेटा कलेक्ट किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है वाया आर सर्वेयर्स, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
So with these all slide, with these all given data, and with the linkage of the earlier Vedic period to till yet, it was all from our education systems. Here how much I thought I should deliver my knowledge with respect of data, facts and figure, I have been delivered you. If guys you like the session, definitely do like and share and subscribe. Thank you so much.